بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان یطلق الرجل المرأة ثم یجد طلاقها ثم یقیم علی فرجها فہما زانیان۔ محترم ناظرین و سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بیان کروں گا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت کی علامات بتائی ہیں۔ ان میں سے ایک علامت جو آج کل کے دور کے اندر بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس کو بیان کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو اس کی آگاہی حاصل ہو۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ میں بات کروں گا، آپ توجہ میری طرف رکھیں اور دھیان کے ساتھ سنیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات بتائی ہیں۔ ان میں سے ایک علامت جس کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا یطلق الرجل المرأة، ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے گا، ثم یجد طلاقها، پھر اس کے بعد اس کا انکار کر دے گا، کہا کہ میں نے تو طلاق دی ہی نہیں، ثم یقیم علی فرجها، پھر اس کے ساتھ تعلقات اسی طرح قائم رکھے گا، اس کے ساتھ قربت بھی اختیار کرے گا، اس کے ساتھ ہم بستری بھی کرے گا، جو جس طرح پہلے معاملات تھے۔ فہما زانیان، آپ نے کیا فرمایا کہ فرمایا یہ دونوں بدکار اور زانی۔ آج کے معاشرے کے اندر یہ علامت بہت زیادہ پائی جا رہی ہے۔ تو اس صورت کے اندر کہ انکار کر دینا، دوسری صورت یہ بھی ہے کہ انکار تو نہیں کرنا لیکن اس کے بعد عمل نہیں کرنا، طلاق ہو جاتی ہے، 3 طلاقیں ہو گئی، مفتیان کرام سے مسئلے بھی پوچھ لیے اور انہوں نے کہہ دیا کہ اب تمہارا آپس کے اندر رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، پھر اس کے بعد بھی ساتھ رہنا، ان کا آپس میں اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سارا زنا تصور کیا جاتا ہے۔ یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ ایک صورت یہ ہے، اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ غصے کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے کچھ ایسے کلمات آدمی کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے آدمی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، اور میاں بیوی آپس کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، کلمات کفر کہنے سے انسان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جس طرح قاری ثناء اللہ پادنی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ فرمایا کہ 2 آدمی آپس میں گفتگو کر رہے تھے، کسی مسئلے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، تو ایک شخص نے کہا کہ بھائی یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے، دوسرے نے کہا کہ پرے رکھ اس شریعت کو، یعنی اس نے کہا اس کو شریعت سے دور کر دے، تو اس طرح کہنا یہ کلمہ کفر ہے، اس طرح اس کی بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے، اس کا آپس کے اندر دوبارہ رہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح دین کی ضروریات کا تمسخر کرنا، مذاق اڑانا، اس سے بھی انسان کا نکاح فاسد ہو جاتا ہے۔ جس طرح روزے کے بارے میں کہہ دینا، کسی نے کہا یار تو نے روزہ رکھا ہے، اس نے کہا روزے تو وہ رکھتے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے سے کیا ملتا ہے، ہمیں کیوں بھوکا پیاسا رکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے الفاظ کہنے سے اس کی بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کسی نے کسی کو سے پوچھا یار کہاں رہتا ہے، اس نے کہا کہ میں تو فلاں جگہ پر، اچھا وہ اللہ کے پچھاڑ میں، یعنی اللہ کی پچھلی طرف تم رہتے ہو، نعوذ باللہ۔ اس طرح کہنے سے آدمی کی بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے اور نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح دوبارہ اس کے ساتھ آپس کے تعلقات رکھنا میاں بیوی والے یہ جائز نہیں ہے۔ تو اپنی زندگی کو گزاریں سوچ سمجھ کر۔ ایک شخص نے کہا کہ جب میری شادی ہوئی تو اس وقت
उस वक्त मैं बातें करता था, बीवी मेरी सुनती थी, बर्दाश्त करती थी। फिर उसके बाद जब बच्चे हुए, वो मुझे बातें करती थी, मैं सुनता था। फिर उसके बाद जब हम दोनों बुढ़ापे के अंदर पहुंच गए, फिर फिर मोहल्ले वाले सुनते थे हमारी बातें, हम आपस के अंदर बातें करते थे, गुस्से के अंदर भी। तो इस हालत के अंदर जब आदमी पहुंच जाता है, फिर बातें बहुत करता है। कहते हैं कि जब बच्चा होता है ना, उसका सारा जो जोर होता है वो घुटनों के अंदर होता है, चलता फिरता दौड़ता रहे, वो बच्चा थकता नहीं है। फिर जब बड़ा हो जाता है, उसका जोर सीने के अंदर आ जाता है, वो जोर वजनी काम करता है, इतना नहीं थकता। फिर जब बुढ़ापे के अंदर पहुंच जाता है, फिर सारा का सारा जोर उसका जुबान के ऊपर, वो बोलते रहते हैं, बोलते थकते नहीं। फिर हम इस तरह की बातें, तलाक तक बात बात आदमी कह देता है, या इस तरह की बात कह देता है कि आज के बाद, ये किनाया तलाक इसको कहते हैं उलमा, कि आज के बाद अपनी बीवी से गुस्से के अंदर था, बीवी को कहा कि जहां से चली जा, आज के बाद मैं तेरा मुंह ना देखूं। ये भी इस तरह के अल्फाज हैं जिससे तलाक, लफ्ज तलाक तो नहीं बोल रहे, किनाया तलाक हो जाती अगर उसने नियत की है तो इस तरह के अल्फाज से परहेज करना चाहिए। अम्मी बीवी को आपस के अंदर ऐसे अल्फाज, और ये मसाइल सीखने चाहिए उलमा से। तिजारत के अहकामात, तिजारत के मसाइल, तिजारत के कैसे करनी सीखते हैं, फला काम कैसे करना, हर एक को सीखा जाता है, लेकिन दीन को क्यों नहीं सीखा जाता? शरीयत के अंदर कम अज कम इतना तो इल्म हासिल करें, नमाज का इल्म, नमाज जनाजे का, और इसी तरह तिजारत का, शादी ब्याह का, तलाक का, ये मसाइल आने चाहिए। कल को इसको पता भी नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं इससे क्या होता है। एक हमारे दोस्त यहाँ पर कह रहे थे, हमारे इर्द गिर्द कोई 10 से 12 लोग ऐसे हैं कि जिनको तलाकें हो चुकी हैं, 3 तलाकें हो चुकी हैं, उलमा ने फतवे भी दे दिए, उसके बाद भी रखी हुई। अब उनका उठना बैठना और आपस में कलाम करना, ये सारा जिना ही तस्वर किया जाएगा। ये कयामत की अलामत में से एक अलामत है। कुछ भी नहीं होता। क्यों कुछ नहीं होता? एक औरत हराम थी तुम्हारे ऊपर, फिर उसके बाद तूने इजाब कबूल किया, तूने कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है, कह दिया, तो वो तुम्हारे लिए वो हराम थी, वो हलाल हो गई। और फिर उसके बाद तूने तलाक तलाक कह दिया, फिर उसके बाद तूने 3 दफा तलाक कह दिया, फिर उसके बाद 3 तलाक होगी। तो अब पहले वो हराम थी, तुम्हारे लिए जायज होगी जब तूने कहा कबूल है, कबूल है। अब जब वही, वहां पर भी अल्फाज इस्तेमाल, अल्फाज माने रखते हैं और उसकी ताकत होती है, और यहां पर भी है कि ये तलाक तलाक कह दिया, तो वहां पर जिस आदमी ने ये बातें कही हैं, उसकी बीवी को ये तलाक हो जाएगी। इस तरह सोच समझ कर बातें करना, अपनी बीवी को, और इस तरह के अल्फाज से परहेज करना, कोशिश करना। कलमात कुफ्र बहुत सारे हैं, उनमें से मजाक के अंदर भी दीन का मजाक उड़ाना, और इसी तरह जरूरियात दीन का मजाक उड़ाना, ये सारी चीजें इसमें से हैं। और इसी तरह एक तजदीद निकाह हुआ करता है एहतियातन। एक तो ये ना कि किसी को तलाक रजी होगी, तलाक बहना होगी, फिर उसके 1 या 2 तलाक हुई, उसके अंदर वो जो करना चाहता है, उसके अंदर ये होता है कि 2 गवाह होने चाहिए, और फिर उसके बाद उसका नया महर होगा, महर भी मुकर्रर होगा, गवाह भी होंगे। लेकिन एक आदमी तजदीद निकाह करना चाहता है। हमारे इलाके एक काजी साहब हैं, उनके बारे में मैंने सुना है, काजी अब्दुर्रहमान साहब। तो वो हर साल अपना निकाह करते हैं, तजदीद निकाह उसे कहते हैं। तजदीद निकाह होता है कि हो सकता है कि लाइलमी के अंदर के मियाँ ने या बीवी ने, दोनों में से किसी ने कोई ऐसे अल्फाज गफलत के अंदर और लाइलमी के अंदर इस तरह के अल्फाज कुफर उनकी जुबान से निकल गए, तो इससे मियाँ बीवी एक दूसरे के ऊपर हराम हो जाते हैं। और फिर तजदीद निकाह होता है, साल बाद आदमी कर ले। वो ये है कि उसके अंदर हक मार नहीं होता, उसके अंदर गवाह होते हैं, 2 मर्द हों या फिर 1 मर्द 2 औरतें हों। तो उसके बाद वो तजदीद निकाह हो जाएगा, और फिर उसके तरह अगर कोई इस तरह की कमी कुताही होगी तो इंशाल्लाह उसका भी इजाला हो जाएगा। तो इस तरह आपस के अंदर रहना फिर उनका ठीक हो जाएगा। तो आपस के अंदर जो रहना है, एक तो पहली बात है मसाइल सीखे, अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दें, खुद भी दीन के मसाइल जो जरूरी है, चलो आलिम बनना तो बहुत बड़ी बात है और फजीलत है, नहीं तो दीनियात जरूरियात दीन जो है, मोटी मोटी चीजें, मिसाल के तौर पर नमाज का, रोजे का, और इसी तरह तिजारत का, तलाक का, निकाह का, ये मसाइल तो हमें आने चाहिए। नहीं है तो पूछ लें उलमा से। तो मुसलमान की शान ये नहीं है, बाप फौत हो जाता है, जनाजा नहीं पढ़ सकते, जनाजा नहीं आता,
गुस्ल के फर्ज नहीं आते। हम यहाँ पर एक जगह पर गए तो उन्होंने बताया कि यहाँ एक ऐसा शख्स दिखाया, हमें भी दिखाया, वो उसके 6 बच्चे थे, उसको गुस्ल के फर्ज नहीं आते थे। अब उसकी कितनी जिंदगी गुजरी है, पहले उसके जब बालिग हुआ, फिर उसके बाद उसके शादी को कितने साल हो गए, 6 बच्चे भी हो गए, फिर उसके बाद अभी तक उसको गुस्ल के फर्ज नहीं आते, तो कितनी मरतबा उसके ऊपर गुस्ल वाजिब हुआ होगा, और इसी तरह हराम खाता खाता रहा। तो मेरे दोस्तों, ये मसाइल सीखें, ये हराम से बचें। शरीयत जो है हमारी बेहतरीन शरीयत है, बेहतरीन दीन है, और सबसे पसंदीदा दीन जो है इन दीन इंदल्लाहि इस्लाम, ये इस्लाम एक ऐसा पसंदीदा दीन है, ये मजहब है, और तमाम मज़ाहिब में से सबसे बेहतरीन। ये हलाल और हराम की तमीज सिखाता है, ये बड़े छोटे का एहतराम सिखाता है, माँ बाप के हुकूक सिखाता है, औलाद के हुकूक सिखाता है, और हर चीज के मसाइल कुरान और हदीस के अंदर ये सारे वजात के साथ बयान कर दिए गए हैं। अल्लाह ताला हम सबको सही तरह जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मियाँ बीवी के हुकूक पढ़ लें। मियाँ को चाहिए अपनी बीवी को चाहिए कि मियाँ के हुकूक क्या हैं, और क्या कैसे जिंदगी गुजारनी है, कैसे रहना है, ये सारी चीजें, ये मसाइल ये सीखें। नहीं तो क्या ऐसा ना हो कि हम जिंदगी गुजारते रहें गफलत के अंदर, और गुनाह की जिंदगी गुजारते रहें, और हम वो गुनाह हमारे खाते में लेके जाएंगे, हमें पता भी ना हो। तो तजदीद निकाह का भी ये भी होना चाहिए अगर हो सके तो, और नहीं तो अपनी जुबान को कंट्रोल करें, मियाँ बीवी के हुकूक, और गुस्सा हो तो किसी और तरीके से निकाल लें और उसको तंबीह कर दें, और या फिर जैसे हदीस पाक में गुस्से को ठंडा करने के लिए आदमी खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए, आदमी वुजू कर ले, तो ये काम कर ले उसको गुस्सा खत्म करने के लिए, ना कि आदमी अल्फाज ऐसे कह दे अपनी बीवी को तो उसके बाद फिर बीवी उसके ऊपर हराम हो जाए। फिर उसके बाद बड़े बड़े नमाजी तहज्जुद गुजार हमने देखे। एक आदमी पीर जुल्फकार साहब फरमा रहे थे, तो कहने लगे कि एक शख्स ऐसा कि वो नमाजी परहेजगार, 8 साल उसने पहले अपनी बीवी से इस तरह के अल्फाज कहे थे, तो उसके बाद वो 8 साल की जिंदगी गुजार रहा था। तो अब उसको खौफ खुदा हुआ, उसने आकर पूछा मसला, उसने कहा कि वो भी नेक औरत है, मैं भी नेक हूँ। तो मैंने कहा कि अगर इस तरह के कोई हम किसी को बताएंगे तो बदनामी होगी, और फिर हमारे इस तरह की बदनामी होगी और हमारे बच्चे भी खराब हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, इसमें बदनामी क्या, ये तो पहले सोचना चाहिए था। तो अब हराम की जिंदगी गुजार रहे हैं और सारी उम्र तुम्हारी इस तरह तबाह हो जाएगी, और आखिरत के अंदर तुम्हें इसका जवाब देना पड़े, ये ठीक है? फिर तो इससे परहेज करें मेरे दोस्तों, बचें और जिंदगी और पाक साफ सुथरी जिंदगी गुजारें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरीके बताए हैं उसके मुताबिक अल्लाह ताला हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।